Tanmay Mukherjee, CEO, Zada Innovation Lab, Indore, Dr. George Thomas, Director of the Institute, Dr. Kshama Paithankar, Head of Department Computer Science, Dr. Pragya Sharma, Head of Department Management, UG, Dr. Uttam Rao Jagtap, President, Institution Innovation Council, Dr. Jayashree Sharma, Vice President, IIC, and Coordinator of ADC. Someshwar Joshi, convener of this today's session and coordinator of Incubation Center, and members of CELL, Dr. Prashant Kushwaha, Dr. Poonam Nagar, Ms. Deepika Rayagwar, Mr. Ashish Sinhal, Mr. Subodh Puntambekar, Mr. Devendra Jain, renowned faculty members and students. I, Deepisha Sisodia, and I, Sonal Shukla, extend to you all warm welcome in today's session on Impact Lecture, organized by Institutions Innovation Council and sponsored by Ministry of Education's Innovation Cell, Government of India. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic movement that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's our honor to invite all the dignitaries to do the honors. Now, I request Director of the Institute, Dr. George Thomas Sir, for the welcome of our guest, Mr. Tanmay Mukherjee Sir, with a sapling, which is a symbol of growth and prosperity. यहाँ मत बैठो, मना कर रहे हैं, यहाँ मत, मैम ने भेजा, इसमें मत बैठो। Thank you, sir. I request Director of the Institute to please address the gathering.
Thank you, Sonal and Dipisha. Very warm, hot. Good morning to all of you. गर्मी बहुत बढ़ गई है और I think जब गर्मी बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें एक चैलेंज एज ए ह्यूमन बीइंग हमको हो जाता है कि हाउ टू कॉम्बैट दिस हीट, है ना। सो उसी एस्पेक्ट को देखते हुए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। आई हार्टिली वेलकम तन्मय जी। he's become more of a family member, and when he will interact with you, you will come to know a character, a strong character he has, and he is constantly working on motivating youth to go for entrepreneurship, innovation, and he has been with for some time with सोनम वांगचुक जी, उनके साथ भी रहे हैं और काफ़ी काम किया है इन्होंने इनोवेशन के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द वर्ल्ड, इफ यू सी द इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड unicorns are produced in large number. Now we are also in the race of one of the top countries producing unicorns. Unicorns जानते हैं आप? यूनिकॉर्न्स जब से टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ है, स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, बट ऑन द कोर ऑफ इट एंटरप्रेन्योरशिप समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? द वेरी टर्म यू शुड नो, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द पर्सन who has a passion and ability to take risk, calculated risk, and he is passionate about doing something for himself, for others. पिछले 10 सालों में, पहले हम लोग के जब हम लोग पढ़ते थे तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज जस्ट अ सब्जेक्ट, हम लोग पढ़ के उसके आंसर दे दिया करते थे, एग्जाम में पास कर लिया करते थे। बट गॉन आर द डेज, अब तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बिकॉज अ कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट गिव जॉब्स टू एवरीबडी। सबको जॉब नहीं मिल सकती है, बट इफ़ यू हैव अ पैशन, कुछ करने का, कोई प्रॉब्लम को आपने सोसाइटी की प्रॉब्लम को समझा और उसका सॉल्यूशन निकाल कर एक मास लेवल पर कॉमर्शलाइज कर लिया उस आइडिया को, तो वो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। उसी के बारे में तन्मय जी भी बात करने वाले हैं, तो लेट अस लिसन टू हिम एंड आई वंस अगेन वेलकम हिम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर उत्तम जगताप एंड द एंटायर टीम ऑफ इनोवेशन Institutional Innovation Council, and I also thank AICTE, All India Council for Technical Education, for providing us the opportunity to conduct this impact lecture session. As you all know, AICTE is one body which is controlling the professional technical education in the country. And आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा BBA और BCA प्रोग्राम भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आ गया है। तो एक बार जोरदार तालियां। इसका माने ये है कि आपका इंस्टीट्यूशन श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इट इज़ इंडिया के सभी BBA प्रोग्राम्स, BCA प्रोग्राम्स, MCA एंड MBA प्रोग्राम्स जो इंडिया वाइड चलते हैं, वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आपके यहाँ से BBA करना, वो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से करना एक बहुत मायने रखता है। इसलिए ये जो नेशनल लेवल के जो इवेंट्स होंगे, जैसे ये अभी जो लेक्चर है, इम्पैक्ट लेक्चर सेशन है, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, एंड बहुत कम लोगों को AICTE ग्रांट देती है इसके लिए। इस प्रोग्राम के लिए भी वी हैव बीन सिलेक्टेड टू कंडक्ट दिस इवेंट। So I congratulate Dr. Uttam Jagtap for initiating, and I also congratulate Mr. Someshwar Joshi and the entire team जो बैठी हैं सामने,
जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत की है। आप पूरा ध्यान से इसको सुने और टेक अवेज आप डायरी निकाल कर पॉइंट्स नोट करें, बिकॉज टुडे इज द डे इट विल चेंज योर लाइफ। समथिंग यू विल गेट विच विल हेल्प यू डूइंग स्टार्टिंग सब बिजनेस। आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है, बिकॉज तन्मय सर के पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ हैं। इनसे आप कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज ही इज़ लिंक्ड विद मेनी स्टार्टअप वेंचर्स और बहुत काम कर रहे हैं अभी। पूरा लाइफ ही डेडिकेट कर दिया है इन्होंने। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही मिले। हो सकता है आपके अंदर जुनून हो, पैशन हो, तो आप अपना खुद का भी एक छोटा काम अभी शुरू कर सकते हैं और बाद में उसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। एक बार फिर से many thanks and God bless you all. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable words. Now I request co-host Sonal to introduce our eminent guest, Mr. Tanmay Mukherjee. Please, Sonal. Thank you, Dipisha. It's an immense pleasure for me to introduce our eminent guest, Mr. Tanmay Mukherjee. Tanmay sir had a long career in the field of composites and specializing in RTM and DCBD processing, process automation for automotive OEM customers and running a family business. Sir exited business to focus on efforts in developing sustainable ecosystem. Sir volunteered for about a year at HIAL, Ladakh with Mr. Sonam Wangchuk, where Sir helped run the operations apart from leading the enterprises that converted in the innovative leading into businesses. Sir now helps in organizations to achieve efficient and sustainable ways of doing things with a special focus on social enterprises. Sir also helps nurture new innovations and mentor startups. I request Tanmay sir to please come forward. अरे हिल जाएगा ना उधर, आप ही कर लो। आगे बैठ जाओ ना, यहाँ से नहीं हटा सकते, मैं सच बात नहीं। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आया? ब्रेकफास्ट नहीं खाया किसी ने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी भी आवाज मजेदार नहीं आ रही है। किस किसने ब्रेकफास्ट नहीं किया हाथ ऊंचा करो। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, फिर सोचते हैं कि एनर्जी रहेगी। So we'll start the day today. इसको थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखेंगे, है ना? ये क्लासरूम लेक्चर नहीं है, इसमें हम आपस में बात करेंगे और सुनेंगे और कई चीजों पे हम आपके व्यूज लेंगे। एक्सेप्टेड? आवाज नहीं आई? ग्रेट। तो मुझे ये कौन बताएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये मतलब ये लेक्चर तो रखवा लिया, सर्टिफिकेट भी थमा देंगे। What is entrepreneurship? Can someone raise your hand and tell me? बैक बेंचर्स, वहां से शुरू करें या सामने से शुरू करें? बैक बेंचर्स, सबसे मजेदार आंसर वहां से आएंगे। चलो, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? यहाँ पे बीबीए के कितने स्टूडेंट्स हैं? एमसीए, बीसीए के कितने हैं? कौन से ज्यादा समझदार हैं? तो आंसर कौन देगा? बताओ। ओके, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? पे बोल सकता है सिंपल भाषा में? सुनाई नहीं दिया? सिंपली पुट, बिजनेस, रनिंग अ बिजनेस इज एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? व्हाट इज अ बिजनेस? कोई बताएगा? बहुत सिंपल, इट इज फाइंडिंग अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब आज आपके घर में जो सब्जी लेके आता है, क्या वो एंटरप्रेन्योर है? नहीं। कौन
कौन कौन बोला? पिटाई करो इसकी। नहीं, एवरीवन इज एन एंटरप्रेन्योर जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो घर में आपकी सब्जी ठेले में सब्जी लेके आ रहा है, वो आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है? मंडी में जाके सब्जी लाने की प्रॉब्लम। आपको मंडी में जाके चूज नहीं करना है, वो छांट के सब्जी ला रहा है, वो आपके घर पे डिलीवर कर रहा है। आप उसको बोलते हो कि कल टमाटर लेके आना, तो अगले दिन वो टमाटर लेके आएगा। आपको एक वो प्रीमियम चार्ज करता है, मंडी से ज्यादा भाव है, पर आपको एक सर्विस ऑफर कर रहा है। जो कोने में आपकी चाय की दुकान है, क्या वो बिजनेसमैन है? करेक्ट। जो आपके यहाँ पे साइकिल वाला जो साइकिल या स्कूटर के टायर ठीक कर रहा है, क्या वो बिजनेसमैन है? करेक्ट। तो ये सारे बिजनेसेस हैं, सिर्फ अंबानी टाटा ये बिजनेसेस नहीं है। हर जो छोटा बिजनेस जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दोज आर एंटरप्रेन्योर्स। और वो क्या कर रहे हैं? ये दे हैव समथिंग ऑफ वैल्यू टू ऑफर टू देयर क्लाइंट्स। वो वैल्यू ला रहे हैं, चाहे वो सर्विस में हो। आज जैसे हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इट इज अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, है ना। हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अगर आप बाहर जाके कोई ये जैसे ये मार्कर या पॉइंटर लेके आए, तो ये प्रोडक्ट है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि मुझे जाके बार बार उसको बटन को दबाना नहीं पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए एक सर्विस प्रोडक्ट रिलेटेड ऑफरिंग है। सो दीज आर बिजनेसेस विच सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। सो राइट फ्रॉम द डेज प्री हिस्टोरिक डे में, आपको मालूम है इंसान का पहला प्रोफेशन क्या था? पहला काम क्या करता था इंसान? अपनी जीने के लिए क्या करता था? शिकार करता था, है ना। हंटर वाज द फर्स्ट प्रोफेशन दैट द मैनकाइंड हैड। सेकंड प्रोफेशन क्या था? गैदरर या फार्मर, है ना। गैदरिंग से वो जैसे जैसे कई जगह पे उसको देखा कि पानी अच्छा है, जमीन अच्छी है, और बार बार एक ही पौधा उग रहा है जो उसको भोजन दे रहा है, तो इट बिकेम फार्मिंग। ये हमारे कोर हमारे ह्यूमन मैनकाइंड की कोर एक्टिविटीज हैं, हंटिंग एंड फार्मिंग और गैदरिंग, ना। इसके आसपास क्या ग्रो किया? कोई आया, उसने बोला हंटर को कि मैं तुम्हारा ये जो भाला है इस पे धार लगा देता हूँ, है ना, या तुम्हारे लिए मैं कपड़े बना देता हूँ, ये जो पीस मुझे मिला है, लेदर जो मुझे मिला है, इससे मैं तुम्हारे कपड़े बना देता हूँ। किसी ने बोला कि मैं तुम्हारा ये जो खाना है इसको मैं छान देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, इसको तैयार कर देता हूँ, कोई खाने की चीज बना देता हूँ। ये क्या चीज हुई? These became service industries। जो कोर हमारी थी वो थी मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, वो थी हंटिंग, गैदरिंग एंड फार्मिंग। उसके आसपास लॉट ऑफ बिजनेसेस ग्रो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए या उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करते गए। दैट्स व्हाई वी से फ्रॉम प्री हिस्टोरिक डेज देयर हैव बीन बिजनेसेस, है ना। आप लोगों ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, यूरोप में अराउंड 1800s हुआ था, ये बता सकता है उसका पावर क्या था? किसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एकदम से ग्रो किया? सबको नींद आ रही है लगता है। What was the power of industrial revolution? स्टीम इंजन, कोल, है ना। जो चीज इंसान मैनुअली कर रहा था, सडनली कोल एंड स्टीम इंजन पावर्ड इट टू अ वेरी हाई लेवल। एंड विद टाइम क्या हुआ? आज हमारा इकोनॉमी को कौन पावर करता है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पावर सोर्सेस? आज क्या पावर करता है? कैन समवन टेल मी? आज आप सामान खरीदने दुकान पे जाते हैं क्या? कैसे आता है आज? ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन क्या है? ई-कॉमर्स, इंटरनेट। So today there are so many things that are powering today's business, which is like internet, e-commerce, artificial intelligence, genetic sequencing। genetic sequencing के बारे में आज genetics is creating a big growth in the overall ecosystem। आज हम जेनेटिकली कितनी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हम देख ही नहीं पा रहे हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमारे आज बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो दैट मींस 1800 में जो शुरू हुआ ना इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बिजनेसेस व्हिच टुक अ जंप, टुडे वी आर इन द पीक ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज वेयर एवरी एक्टिविटी इज पीकिंग, मतलब हर चीज ऊपर है। दिस इज द टाइम when you have so many things, so many enablers around you, जिसकी मदद से you can do so many new things। So this is the time what we call is the age of the entrepreneur, where new things can be created। It is not about कि हाँ 8 से 5 जॉब कर लिया और बैठ गए।
आज आपके पास कोई आइडिया है, अपॉर्चुनिटी आज भरी हुई है एंड यू कैन रीच द वर्ल्ड, है ना। बट सवाल ये होता है कि आप लोग बिजनेसेस को डिफाइन, एंटरप्रेन्योर किसको डिफाइन करते हैं? तो आज हिंदुस्तान में 95% businesses are these small businesses, like आपके सब्जी वाले, चाय वाले, रेस्टोरेंट वाले, जो सबने आपकी रेडी लगा के बैठे हैं, ये 95% बिजनेस हिंदुस्तान में यही है ना। 5% और 4% आई वुड से आर स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। जैसे मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, हम सरीके हम 4% में आते थे, एंड 1% है पीपल लाइक टाटा, अंबानी एंड अदर्स। Let that sink in, that the country is not run by the big businesses. The country is run by small businesses that are there around us. हमारे कोने में, जो घर के कोने में जो पहले किराने की दुकान होती थी, पुश्तों से चलती थी, है ना, घर वाले सारे चलाते थे, ये बिजनेसेस हमारे देश को चलाते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं चलाते हैं। पर आज हमारे पास चैलेंज क्या है हिंदुस्तान में कि इफ यू यही स्टैटिस्टिक्स अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे, आज यूएस इकोनॉमी में देखेंगे, तो स्मॉल बिजनेसेस करीब करीब 40% होते हैं, मीडियम अनदर 40% होते हैं, एंड लार्ज अबाउट 20% होते हैं, है ना। तो आज हिंदुस्तान में ये चैलेंज क्यों है कि हमारे छोटे बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते हैं? व्हाई कांट दे बिकम बिगर? आज ये मिसिंग मिडिल करके एक फिनोमिनन होता है। यूएसए में आप देखें तो करीब 30% आर माइक्रो, 40% आर माइक्रो, देन देयर आर मीडियम एंड देयर आर लार्ज। हिंदुस्तान में वी हैव गॉट huge 95% माइक्रो एंड देन स्मॉल एंड मीडियम और लार्ज तो नेग्लिजिबल है, 5% में आते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? व्हाई डू यू थिंक हिंदुस्तान में छोटे बिजनेसेस ग्रो नहीं करते हैं? कोई बता पाएगा? या बिजनेसेस में लोग जाते क्यों नहीं है? कोई बता पाएगा? रिस्क रहता है, करेक्ट, और रिसोर्सेस, ओके, इंटरेस्टिंग, और फंडिंग, ग्रेट, और आप में से यहां कितने लोग वैष्णव में आए हैं ये देख के कि भाई कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है? कॉलेज कोई भी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? कैंपस प्लेसमेंट कैसा होगा ये देखते हो? कितने लोग देखते हैं? हाथ ऊंचा करो। ढूंढते तो यही है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट फंसी हुई है हिंदुस्तान में, है ना। हमको सबको पहले देखना है कि जॉब कौन सी मिल जाएगी, सेफ जॉब मिल जाए तो सेफ सिक्योर हो जाए, फिर हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? जॉब एंड सिक्योरिटी ओरिएंटेड माइंडसेट, है ना, कि जॉब लग जाए जिंदगी भर का, फिर कुछ करना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, है ना। होता यही है। सेकंड क्या होता है? पैसिव रेसिलियंस। भगवान का दिया सब कुछ है, जो है बहुत बढ़िया है, कुछ करने की क्या जरूरत है ना। इसको बोलते हैं पैसिव रेसिलियंस, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्केल अप, जैसा किसने बताया कि हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज, आइडियाज, ग्रोथ का पुश, हमको पुश करने के लिए इतने लोग नहीं होते हैं ना। इनएबिलिटी टू इनोवेट एंड एक्सपैंड द मार्केट। आज आप जाएंगे, वो जो कोने में पंचर बना रहा है ना, वो उसी तरह से बनाया जा रहा है। आज पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत चेंज आया है कि वो ऑटोमेटेड मशीनें ले आए हैं खोलने के लिए, टायर को रिफिल करने के लिए। आप वो सब्जी वाले को देखेंगे तो आज भी वही कार्ट चला रहा है। थोड़े बहुत लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आ रहे हैं, उसको कार्ट ले आ रहे हैं। आजकल मैंने देखा है कि वो 3 व्हीलर्स में भी आ जाते हैं, उसमें एक अनाउंसमेंट होता रहता है, सब्जी वाला आवाज नहीं लगाता, उसका टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। अब धीरे धीरे हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन? कि वो जो बिजनेस जिस स्टाइल से कर रहा है और जनरेशन से कर रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं ला रहा है, और इसीलिए ना वो अटका हुआ है वहीं पे। तो व्हाट इज द ड्राइवर? ड्राइवर इज इनोवेशन। कि अगर आप नए तरीके से उसी बिजनेस को नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे उस बिजनेस में आए। आज जो कोने में जो रेडी लगा के, मान लीजिए जो गोलगप्पे बेच रहा है, क्या वो चाहेगा उसके बच्चे उस बिजनेस में आए? वो बोलेगा नहीं, इनको पढ़ा लिखा के कोई जॉब में लगवा दो प्राइवेट में, चाहे प्राइवेट जॉब में वो सिर्फ फोन ही अटेंड कर रहा हो या कांची साफ कर रहा है ना। जबकि वो गोलगप्पे बेच के जितना कमाता है ना, यहाँ के सब कंबाइंड में लाके नहीं कमाते हैं, ठीक है। रियलिटी ये, पर वो प्राइड नहीं आता है हमको उसको स्केल करना नहीं आता है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उस बिजनेस को कैसे बड़ा करें, कैसे नई जगह ले जाएं, कैसे उसको ऑटोमेट करें, किस तरह से हम उसको एक मल्टीपल चेंज करें, बहुत सारी फ्रेंचाइजी चलाएं। हम इस डायरेक्शन में नहीं सोचते। हमको इनएबिलिटी टू स्केल अप की बीमारी है ना।
इनेबिलिटी टू चैलेंज एंड शेक अप द सिस्टम। आज आपको लगता है कि अगर जेफ बेजोस जानते हैं क्या है, कौन है? अमेज़न का फाउंडर, वेरी गुड, है ना? इफ ही हैड नॉट सेड कि भाई मैं चीजों को ऑनलाइन बेचना चाहता हूं, जब उसने बोला था ना कि वीडियो में कि आई वांट टू सेल ऑनलाइन, लोग हंसे थे, है ना? हंसते थे वो कि क्या बेवकूफ ऐसी बात कर रहा है, क्यों कोई खरीदेगा, पड़ोस की दुकान में सब कुछ मिल रहा है, मैं क्यों कोई खरीदेगा? वो उसने शेकअप किया सिस्टम को, बोला कि मैं करूंगा ये, एंड ही वाज सक्सेसफुल। हमारे यहाँ ऐसे करने वाले लोग बहुत लिमिटेड हैं, जो मतलब सिस्टम को चैलेंज करे। हमको बचपन से आदत है कि ये 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना एग्जाम में, ये तो 4 क्वेश्चन आएंगे, इतना ही अटेम्प्ट करना है, इसके आगे नॉलेज गेन नहीं करना है, होता है ना? वेरी गुड, चलो एटलीस्ट वी हैव एन ऑनेस्ट क्राउड हियर। सो मेनी अदर रीजंस, एंड इसके बावजूद टुडे इन इंडिया वी आर सिटिंग ऑन अ बिग बंच ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसको सॉल्व करने के लिए आज लोगों की कमी है। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास भरी हुई हैं, यू नो, इनइक्वालिटी इन इनकम इज अ बिग चैलेंज। आज फार्मिंग में पैसा नहीं है, एंड येट $1 ट्रिलियन साल का फार्मिंग में फूड वेस्ट होता है हिंदुस्तान में, आपको मालूम है? $1 ट्रिलियन, हम बोलते हैं अपने आप को कि हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन a year is the wastage in food alone। खेत से आपकी थाली तक आने के बीच में 23% खाना वेस्ट हो जाता है। Look at the opportunity that it brings on your plate। उसको वैल्यू एडिशन करने की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर हम सब क्या कर रहे हैं? हम अगली जॉब ढूंढने के लिए, अगला इंटरव्यू ढूंढने के लिए, अगला ऐप बनाने के टेंशन में घूम रहे हैं। ये कौन सा ऐप बनाएंगे, कैसे स्टार्टअप करेंगे? हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमारे आसपास सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। अब हम बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लगता क्या है, ठीक है? तो कुछ मजेदार सवाल आएंगे। रेडी है ना सब? सब सो गए लगता है। रेडी है सब? ग्रेट। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना 3-4 चीजें लगती हैं, जो आपके यहाँ पे MBA, BBA और थोड़े बहुत BCA, MCA वालों को भी सिखा दिया जाता है। BCA, MCA वाले, आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा दिक्कत रहेगा, है ना? BBA वालों ऐसा रहेगा ना? या ये अभी BCA, MCA वाले कुछ और प्रूव करेंगे? आज करेंगे प्रूव, देखते हैं किसके आंसर ज्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 2-3-4 स्किल्स लगती हैं। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेते आना पड़ेगा, खड़े खड़े दूसरों के पीछे दौड़ने से नहीं होगा, है ना? सेकंड इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग। जैसे हम कोई कंपटीशन में जाते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो प्लानिंग करते हैं ना कि भाई कैसे जीतेंगे, क्या प्लान होगा। अगर 4 लोगों की टीम है तो बोलेंगे तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, और मैं पीछे खड़ा रहूंगा, है ना? ऐसा करते हैं ना? तीसरा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो किसी भी बिजनेस का कोर है। आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है तो लोग आपको ऐसे ही पैसे नहीं देंगे। यू हैव टू फिक्स समथिंग, चाहे वो सब्जी वाला आपके घर में सब्जी ला रहा हो, या पंक्चर ठीक करने वाला आपके स्कूटर को, कार को ठीक कर रहा हो, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे और कहानियां सुनाते रहेंगे तो दुनिया ज्यादा दिन नहीं टॉलरेट करेगी आपको। एंड लास्टली क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? कैन समवन टेल मी अ क्रिएटिव आइडिया जो एक बिजनेस में चेंज हो गया? वन एग्जांपल। डीमार्ट में क्या हुआ? मतलब सभी चीजों को एक ही जगह ला के रख दिया। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्रिएटिविटी मतलब बहुत ही क्रिएटिव किसी ने आइडिया सोचा है? एनीवन एल्स? अच्छा एग्जांपल है। एनीवन एल्स? ज़ोमैटो। अगेन अभी सब ऑनलाइन पे ही चल रहे हैं, अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन स्टोर्स तक गए हैं। और क्या है बताओ? हाँ, चलो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हमारे आसपास देखेंगे, पर कोई भी क्रिएटिव आइडिया होता है ना, हमको लगता है अरे वाह ये क्या कर दिया, है ना? एंड सडनली दैट बिकम्स वायरल एंड वी से कि हाँ ये दिस इज अ प्रॉब्लम दैट शुड हैव बीन सॉल्व्ड। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना। नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? अगर ये 4 चीजें आप देखेंगे ना, इनको हम अगर अपने ओवरऑल टर्म्स में देखें, नॉलेज टर्म्स में, जो आप आज स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 4 तरह के नॉलेजेस लगते हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स को क्या बोलते हैं? जैसे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इनिशिएटिव्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है कॉग्निटिव स्किल्स। आप एग्जाम में देते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस होता है, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग होता है,
These are cognitive skills where you take logical decisions कि अगर ये मेरे पास ऑप्शंस हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, है ना? सेकेंड स्किल क्या है? मैनेजमेंट स्किल्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज, हाउ डू यू मैनेज द रिसोर्सेज दैट आर देयर विद यू, वेदर इट इज पीपल, रॉ मटेरियल, कस्टमर्स. कैसे आप उनको स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे उन पर डिसीजंस लेते हैं. सो मैनेजमेंट स्किल्स जो आज आप एक MBA इंस्टीट्यूट में आके सीख भी रहे हैं. थर्ड क्या है? सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? लोगों से बात करने के लिए. लोगों से बात करना, अपने स्टेक होल्डर से बात करना. वेरी गुड. कस्टमर से अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने एम्प्लॉयर्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने सप्लायर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके विजन को कोई नहीं समझेगा. आज नाइकी का लोगो क्या है? What does it say? Just do it. है ना? Simple 3 words में बोल देता है just do it. It talks about liberation. It talks about independence. It talks about free spirit. है ना? That's what we say when we say just do it. ठीक है ना? So Nike is a classic example which tells you that what a logo can mean. What is the other complex, let's say, communication? मतलब अगर आपका communication अगर if you are not communicating well, then what happens? Can someone tell me an example? Customers review, है ना? जैसे आपके customers ने कोई feedback दिया और आपने जवाब नहीं दिया, तो फैलती जाती है notoriety कि भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये delete है ना? What is the fourth skill? The fourth skill is the technical ability. So business has 4, on entrepreneurship has to have 4 skills. The one is the cognitive skill, management skill, social skills, and obviously the technical skill, the ability to solve a problem. आप में अगर knowledge नहीं है कि मुझे कैसे problem solve कर रहा हूँ, आप चाहे खाने का ठेला लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, आपकी अगर रेसिपी ठीक नहीं है तो कितनी भी मार्केटिंग कर लें, कितनी भी टीम बना लें, रेसिपी ठीक नहीं होगी तो कस्टमर नहीं आएंगे ना? ग्रेट. अब हम आते हैं What defines you as a person here? अगर हम इस ग्रुप को लें, हमने यहाँ पे 4 कैटेगरीज डिफाइन की है. ओके? And I would request each of you to raise a hand कि which category do you associate yourself with? Okay? Are we ready? So the first category is creative, constantly on the move, smart, decision maker. Smart का थोड़ा bias है यहाँ. Decision maker, enthusiastic, team player, go-getter, solution finder, never say die. Is this what defines you? Yeah. Diligent, systematic, steady pace. लॉक कर लेंगे, पहले सबका वोट लेंगे. Diligent, systematic, steady pace, sincere, follows rule, passive, creative, peaceful. ये वो होते हैं जो क्लास के मॉनिटर बनते हैं, है ना? तीसरी कैटेगरी, relaxed, chilled out, no pressure, center of party, बड़ा फ्रेंड सर्कल. ये हमारे बैक बेंचर्स होते हैं ना? वेरी गुड. एंड डी एक और कैटेगरी है, none of the above. ठीक है? Shall we take in the votes? Can someone tell me कैटेगरी ए में कितने लोग हैं यहाँ पे अपने आप को एसोसिएट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग ले लो? Yes sir. ओके, वोट से लॉक कर दिया जाए. कैटेगरी बी, डिलीजेंट, टीचर्स पेट, सिस्टमैटिक, स्टडी पेस, सिंसियर, फॉलो रूल. कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. बैक बेंचर्स भी टीचर्स पेट. वेरी गुड. 16. क्लोज फाइट. अब ये सबसे बड़ा कैटेगरी है. पहले मैं डीप, रिलैक्स, चिल्ड आउट, नो प्रेशर, सेंटर ऑफ पार्टी. मैं बाकी सबको छोड़ लूं? 100 लोग. वेरी गुड. डी, none of the above. None of the above में कितने हैं? ये भी 10 लोग, 10-15 लोग हैं. ठीक. ओके, फैंटास्टिक. What do these categories define you? You know, ये जो बदमाश होते हैं ना, ये पहले वाले कैटेगरी वाले, ये भी बदमाश है और ये भी बदमाश है. इन दोनों में फर्क यही है, इनमें से मैक्सिमम ना बिजनेसेस क्रिएट करते हैं या कुछ अलग चीजें करते हैं जो मतलब ये मतलब दे ब्रेक द मोल्ड. ओके. सेकंड कैटेगरी, ये सिंसियर, एक पर्टिकुलर फ्लो में चलते हैं कि जैसा बताया गया है वैसा फॉलो करो, बाउंड्रीज को टेस्ट नहीं करो.
ठीक है। थर्ड है जो जिंदगी जी रहे हैं जैसा है मस्ती में है, ठीक है। फोर्थ ऑब्वियसली किसी को अगर डिसाइडेड नहीं है, वी आर हैप्पी ऑन दैट। सो व्हाट इज योर करियर गोल इज माय सेकंड क्वेश्चन टू यू। फर्स्ट, कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब। Second, challenging career in the armed forces. Third, high growth career in the private sector. Fourth, making a difference in the education field or NGO. Fifth, create a business based on an idea you have or join a family business. Sixth, others. ठीक है? We'll vote others again, हाँ? So category 1, comfortable government job. कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Category 2, challenging career in the armed forces. MBA वाले हैं इनमें सब अब बाहर आ गए, ठीक है। Okay. Category 3, high growth career in the private sector. सारे 50 एक मान ले रहा हूँ। Making a difference in the education field or an NGO. NGO में कितने लोग जाएंगे? 2. Okay. Create a business based on an idea you have or join a family business. वाह, यहाँ पे बहुत सारे हैं। Very good. 50. किया जाए। नहीं, लॉक कर लिया है, सामने से दिख रहा है। Others में कितने हैं? इनको कोई क्लैरिटी नहीं है। Very good. ये भी बहुत अच्छा है। 10 लोग। Do you see a correlation? है ना? हमने कहा कि जो काइंड ऑफ डायनामिक लोग हैं वो 14 हैं, मस्तीखोर 100 हैं। 114 का एक ग्रुप है। और यहाँ पे जब वी टॉक अबाउट अ चैलेंजिंग करियर, वेदर इट्स अ बिजनेस और हाई ग्रोथ प्राइवेट, ये भी 100 है ना? दिस इज टिपिकली अ ग्रुप व्हिच गोस, यू नो, दिस इज टिपिकली अ ग्रुप जो बता रहा है कि जितने बदमाश है, जितने थोड़े ये रूल तोड़ने वाले हैं ना, ये हाई ग्रोथ लाइन में थोड़ा जाते हैं क्या? सही होता है क्या? और जो सिंसियर है वो कहाँ जाते हैं? We will test this, we will test this now, okay? ये कैटेगरी मैंने छोड़ रखा था, ये मेरे लिए। Tell me, how many can you identify this personality? We know the personality? Please name it. Anand Mahindra. Anand Mahindra. Great. Anand Mahindra. So we could identify the first name. So we give 1 vote. ठीक है? अभी वोटिंग होगा. Can someone tell me who is this person? कोई नहीं जानता इनको? नहीं जानता इनको? Okay. This is Indore Municipal Commissioner, Mr. Shivam Verma. 1-0 से अभी चल रहा है business versus others. Who is this gentleman? गड़बड़ हो गया आपको? No one knows him? Great. This is Antonio Guterres, United Nations के General Secretary. We have another 0. Who is this gentleman? सब जानते हैं? Mark Zuckerberg. Okay. So Mark Zuckerberg, सब जानते हैं? सब जानते हैं? Mr. Ambani, Chairman Reliance. इनको कौन जानता है? चलो। जानते हो तो बोलो, ऐसे समझ चलो। नारायण मूर्ति। और कौन बिलीव करता है नारायण मूर्ति है? सब जानते हैं नारायण। Does anyone have a separate view on this person? ये है मिस्टर श्रीधरन, the force behind Delhi Metro, the one who revolutionized the metro को कैसे before time complete करना है. He was one of the finest administrators. Okay. स्कोर अभी भी 3-0 है. ये कौन है? ये थोड़ा टफ है. किसको मालूम है यहाँ पे?
One of the biggest employer in this country today after Indian Railways, Tata and Sons, N. Chandrasekharan, Chairman Tata Group. आप लोग नहीं पहचान पाए तो सॉरी, 0 पॉइंट यहाँ पे भी आया। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मिक्स लिया है जो बिल्कुल रैंडम नहीं। इनको कौन जानता है? अजीत डोभाल, राइट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ओके। इनको कौन जानता है? सब जानते हैं। फाउंडर बोर्ड, इनको कौन जानता है? बिल गेट्स, बहुत अच्छे। कोई नहीं जानता? I'm giving a 0 here. This is Antony Blinken, Secretary of State USA, number 2 in command. सब जानते हैं? Elon Musk, okay? ये कौन है? चलो किसी को नहीं मालूम है ना? ये है सीईओ नीति आयोग, दिस इज सुब्रमण्यम। ये कौन है? सब जानेंगे। जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल, वन मोर हियर। ये कौन है? एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर, क्लोज, और रघुराम राजन। चलो एटलीस्ट समवन नोज इट। फाइनल स्कोर क्या मालूम है? 1 2 3 4 5 6 2। व्हाट इज द टेल यू? 6 बिजनेस वर्ल्ड के लोगों को आपने फुर्ती से पहचाना, और जो उतना ही इंपैक्ट अपने गवर्नेंस से, अलग अलग चीजों से कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ आप 2 को पहचान पाए, है ना? व्हाट डज दिस टेल यू? दैट we keep, while there are some really wonderful people out there, but the world tends to remember people who create new things, products, solutions, who create new enterprises which generate employment for thousands of people, who capture imagination of people with their vision. आज एलन मस्क को आप उनके प्रोडक्ट्स के अलावा उसके विजन के लिए जानते हैं। बोलता है मार्स को कॉलोनाइज करूंगा, धरती संभल नहीं रही है तो मार्स कॉलोनाइज करूंगा। पागल है, वो अपना विजन लेके चलता है, बट ही एक्साइट्स अस, है ना? Creates a new future with technological and industrial solutions, ना? Create organization that last beyond the tenures as leaders. जैसे टाटा, generations have gone, but the organization still goes strong and keeps expanding and rediscovering and reinventing itself. Whether it was salt to software, they have led everywhere. ठीक है ना? तो what did this tell you? That a score of 6-2, ऐसा भी नहीं कि मैंने बिल्कुल रैंडम लिए थे, बायसेस दोनों तरफ मैंने डाले थे, but what it told you is your recognition of the people who have done these wonderful things is much stronger, and that's why businesses, entrepreneurs, enterprises is what excites us all more than anything else. ये हमारे back of the mind सबके पास रहता है, हम सिर्फ इसको cleanly बोलते नहीं है। जब हम बाहर आते हैं तो बोलते नहीं जॉब करना है, कैंपस प्लेसमेंट कैसा है वहीं जाना है ना? बट एवरीवेयर वी गो, दीज आर द पीपल हु आर कैप्चरिंग आवर इमेजिनेशन। सो व्हाट मेक्स अ गुड एंटरप्रेन्योर? अ गुड एंटरप्रेन्योर इज वन जिसमें हमने देखा ना बहुत सारी स्किल्स के बारे में, जो बदमाश होते हैं, जो मस्ती में रहते हैं, है ना? दीज आर द पीपल हु ब्रेक रूल्स, ब्रेक द नॉर्म्स। उनको चिंता नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, दे लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो बेसिकली they have a self awareness, they know मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? आज जो वहाँ पे गोलगप्पा बना रहा है ना, वो कल को ये नहीं बोलता है कि पड़ोस वाला पिज्जा बना रहा है तो मैं भी पिज्जा बनाना शुरू कर दूँ। नहीं करता है ना? नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ को जानता है और जानता है मैं कैसे इसको चला सकता हूँ, और उसी में वो ग्रो करता है। So knowing the strength and weakness of yourself, the self awareness कि मेरी क्या ताकत है, मैं उसमें ही वो करना चाहूंगा। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हर एक की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी अपनी वीकनेस है। अगर आप ये यहाँ पे सोचेंगे कि मैं इनके तरह काम करना शुरू कर दूंगी तो ये नहीं होगा। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए and then explore what you can do. Maybe you are an introvert, maybe you are an extrovert. An extrovert can say I want to go into public speaking, but if an introvert starts saying that, then there is a challenge. You can't do that always. No, they are brilliant speakers, but then
You have to look into what can I do best with my given resources. So self-awareness is one of the most important parameters. Second is self-regulation, है ना? हमारे दिमाग में रोज hundreds of random thoughts आते हैं. मैं सुबह उठता हूँ, बचपन में कितने लोग पायलट बनना चाहते थे? हमारे यहाँ जनरेशन में तो यही होता था, इंजीनियर, डॉक्टर, उसके बाद सब बोलते थे मैं तो पायलट बनूंगा. 8-9 तक आते आते सबका भूत उतर जाता था, है ना? पर ये जो थॉट्स है ना हमारे दिमाग में, रोज नए थॉट्स आते हैं जिसमें वी फील वी कैन डू दिस, ये हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एंटरप्रेन्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें एंड अपने इंपल्सेस को समझें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. हर चीज जो आइडिया दिमाग में आ रहा है, मे बी दे आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट, है ना? हाउ डू वी वर्क विद देम? मोटिवेशन. आज बिजनेस सिर्फ आपके पैसे पे या आपके उस पे नहीं चलता है कि आपका मॉडल कितना बढ़िया है. आप अगर लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने पूरे इकोसिस्टम को, तो आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे. आप रोज रोटी सी सूरत लेके आ जाइए, आपका बिजनेस 2 दिन में बंद हो जाएगा. आप रोज एनर्जी के साथ आइए, पूरा माहौल, पूरी कंपनी एनर्जेटिक हो जाती है. देन दे आर थिंकिंग, लिविंग, थ्राइविंग. ओके? Empathy, understanding what is important for other people. Empathizing with your customers, मतलब दूसरे के बारे में सोचना. Empathizing with your suppliers, empathizing with your employees. अगर आप सबके साथ उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच नहीं चल रहे हैं, then your business will certainly grow. Can someone give me a classic example कि empathy के साथ किसी का business grow किया हो? Anyone? टाटा, है ना? टाटा इज अ क्लासिक एग्जांपल. जब बॉम्बे में अटैक हुआ था और होटल में they were attacked in the Taj Hotel, they took care of the employees. Everybody was paid full wages. Everybody's treatment was done. They took care of the people, and that's why those employees stood with Tata when the time got tough. So this is something which is a classic case where you know companies thriving with empathy. यानी good businesses take care of the people. सोशल स्किल्स, ऑब्वियसली आपको सोशल स्किल्स लगेंगे. अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है. आप देखते हैं आए दिन कि किसी ने कोई रैंडम स्टेटमेंट दे दिया और उनका शेयर मार्केट में स्टॉक कोलैप्स कर गया, किसने कुछ तो भी उल्टा सीधा बोल दिया, है ना? सो कंट्रोलिंग व्हाट यू से, कंट्रोलिंग द नैरेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग बिजनेसेस. सो व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर? knows what needs to be done, knows what is right for the business, डेवलप एक्शन प्लान्स टू अचीव द गोल्स. कि आप कैसे, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको प्लान करना पड़ेगा. आज अगर आप कॉलेज में हैं एंड यू वांट टू से कि आई वांट टू डू अ बिजनेस, देन डू यू नो व्हाट डू यू वांट टू डू? मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ नहीं मालूम. लिस्ट आउट मे बी 10 पॉइंट्स. दीस आर द पोटेंशियल थिंग्स आई गेट टू वर्क ऑन देम एवरी डे. छोटे छोटे स्टेप्स आप अगर आप रोज लेंगे तो यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू कम टू इट कि यस आई एम देयर. You'll be better than the last day every day. आप अगर सोचेंगे कि एकदम से अचानक कोई बिल गेट्स पैदा हो जाता है या बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग पैदा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है. मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक क्यों बनाया था मालूम है? Anyone? टाइम पास नहीं. He tried to make a dating app inside his campus. He connecting the right profiles with each other. मतलब उसके कैंपस में उसने हैक किया स्टूडेंट्स का डेटाबेस और उनको कोरिलेट करने की कोशिश की कि किससे अच्छी पटेगी. ठीक है? उस आइडिया को ही कॉल्ड इट फेस मैच एट दैट टाइम. ही वर्कड ऑन इट फॉर अबाउट 5, 6, 7 इयर्स बिफोर इट इमर्ज्ड एज फेसबुक. रातों रात नहीं हुआ, है ना? सेम वे देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज. जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का मैं एग्जांपल देता हूं कि ही इज नोन एज एन इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, बट ही नेवर इन्वेंटेड द लाइट बल्ब. लाइट बल्ब उससे 70 साल पहले किसी ने इन्वेंट कर लिया था. उसके बाद कम से कम 100 लोगों ने और उस लाइट बल्ब पे काम किया. थॉमस अल्वा एडिसन इज नोन फॉर डूइंग 3000 इटरेशंस ऑन द लाइट बल्ब. अलग-अलग चीजें उसने ट्राई की, अलग-अलग चीजों से उसने उसको इंप्रूव करता गया. एंड दैट्स व्हाई इवन आफ्टर ही लॉन्च्ड द बल्ब, ही केप्ट ऑन इंप्रूविंग इट, केप्ट ऑन चेंजिंग इट. दैट मींस यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर आइडिया. यू कांट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स. गुड बिजनेसेस वर्क दैट वे. टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस. आप अगर एक बिजनेस चला रहे हैं, you have to be responsible for what you do. You cannot just escape your responsibility. Communicating में responsibility. Opportunities पे देखो, problems तो आपको रोज आएंगी. Problem में रोने वाले भरपूर मिलेंगे आपको. But the people who succeed are the ones
टू वर्क ऑन देयर अपॉर्चुनिटीज कि मैं इसमें क्या प्लसेस ले सकता हूं या ले सकती हूं और आगे बढ़ सकता हूं ना। आप बैठ जाएंगे अगर प्रॉब्लम से तो आप उन हजारों की भीड़ में हैं जहां पे जिनको अगली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। डू यू नो टुडे 21 टू 24 की एज ब्रैकेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है कंट्री में? एनीवन? आपका जो एज ब्रैकेट है ना, जो पास आउट होगा, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितना है कोई बता पाएगा? 44% ऑफिशियली, यानी हर दूसरा पर्सन यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसको जॉब नहीं मिलेगी। यू नो दैट? ये रियलिटी है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आर यू गोइंग टू बी अमंग दैट 56% will get an opportunity, or are you going to be the 40% who does nothing about it? Are you going to change your way कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कोई और एंटरप्राइज करना है, I want to do something else, or you are going to sit and say कि भाई स्टैटिस्टिक्स ही यही है तो अब तो आराम से पढ़े रहो? ऐसा करेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही है? ग्रेट, है ना? So focus on opportunity rather than the problems. Problem सुबह शाम आएगी। इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। We'll come to some interesting case studies. So ये routine है। And there is nothing called a perfect entrepreneur। दुनिया भर के आप एग्जाम्पल्स लेंगे, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, घटिया भी हैं, ब्रिलियंट भी हैं। So what do good entrepreneurs do? They make a sense of what they are doing। मतलब आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एक वो देखा, किसी ने यहाँ पे कोई नया वो मार्केट प्लेस खोला, उसने एक दुकान खरीदी। लोगों ने बोला तूने इतनी महंगी ये दुकान क्यों खरीद ली? यहाँ पे इतनी महंगी दुकान में तेरा तो महीने का बिजनेस ही नहीं होगा। आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने उस दुकान के सामने 7 ठेले वालों को 15,000 रुपए महीने में जगह दे दी। जगह उसकी नहीं है, इंक्रोचमेंट है, बट स्ट्रीट फूड का मार्केट चूंकि वही है, उसने दुकान के सामने की जगह 7 लोगों को दे दी। 7 लोगों से वो 15,000 महीने का कमा रहा है। उसकी दुकान जस्टिफाइड हो गई उस कॉस्ट, है ना? उसके पास ये विजन था कि मैं बैठा नहीं हुआ हूं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लूंगा। सो सेंस मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंटरप्रेटिंग द डेवलपमेंट्स बिफोर दे हैपन। मतलब होने से पहले उसकी अपॉर्चुनिटी को कैसे सेंस करके रास्ता निकालना। बिल्डिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, आई विल गिव यू सम केस स्टडीज गोइंग फॉरवर्ड जिसमें हम बात करेंगे हाउ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं। एंड विजन को बनाना, कम्युनिकेट करना, आप क्या करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। एंड कमिंग अप विद न्यू थिंग्स, तो ये है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद सम ऑफ द केस स्टडीज, आई जस्ट वांटेड अ शॉर्ट रन। इसको मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगा, आपको कहीं कोई रुक के पूछना है, यू आर फ्री टू अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू कम बिकॉज आई वांट टू फ्रॉम माय जर्नी आई वांट टू कम अप विद सम केस स्टडीज जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, है ना, कि एक बिजनेस चलाने के लिए जरूरत क्या पड़ती है। तो मेरा बैकग्राउंड है, आई कम एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। 96 में मैंने अपना गोल्ड मेडल किया था REC जलंधर से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। उसके बाद आई वाज वर्किंग विद सेन-गोबाइन, मेट्रोटेक्स, देन इन्फोसिस, देन आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस व्हिच वाज कॉल्ड टेकफोर्स कंपोजिट्स, एंड वी वर द नंबर 1 सप्लायर्स फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इन द कंट्री। जैसे आज आपने वॉल्वो का बस अगर देखा है तो उसका पूरा फ्रंट रियर हम बनाते हैं। अगर टेम्पो ट्रैवलर आपने देखा है तो उसके बम्पर्स, डैशबोर्ड्स हम बनाते थे, है ना। अगर जॉन डियर ट्रैक्टर देखा है तो उसका कैनोपी, फेंडर्स हम बनाते हैं। तो वी यूज्ड टू मेक एवरी पॉसिबल पार्ट इन द बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। ये हमारी फैक्ट्रीज थी इंदौर में, गोवा में, देन वी हैड अ JV विद अ जर्मन कंपनी, whether it is Daimler Trucks, Post Motors, Tata Motors, JBM, ACGL, BHEL, John Deere, JCB, you name the vehicle, उसमें हमारे पार्ट्स होते थे और यहाँ इंदौर में बैठ के करते थे। These are all, we also took part in a lot of international exhibitions। तो लंदन की जितनी डबल डेकर बसेस है, रेड बसेस आप देखते हैं, उसके पार्ट्स हम सप्लाई करते थे, है ना। So these are the kind of, and we were covered well, and हमने अपने बिजनेस को ना बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था अपने फादर, मेरे अंकल को, कम से 30-40 लोग थे और 40-50 लाख का टर्नओवर करते थे, ना। By the time I left my business, we were 700 people with 100 crore turnover, and बहुत सिंपल चीज हमने की, हमने नई टेक्नोलॉजी लेके आए और पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेट किया। जैसे जब हम फाइबर ग्लास के पार्ट पहली बार, फाइबर ग्लास वो मटेरियल है जिससे आपके हेलमेट बनते हैं, है ना। जब हम व्हीकल्स के पार्ट्स बना के लाए ना तो लोगों ने बोला ये तो प्लास्टिक है, ये टूट जाएगा, ये नहीं चलेगा, इसको डिजाइन कैसे करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे। तो हमने पूरा अपना एक इंटीग्रेटेड सेटअप लगाया जिसमें हम डिजाइन भी करते थे, डिटेलिंग भी करते थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बनाते थे,
पूरी सर्विस देते थे। जैसे आज एक बस बनाना बहुत इजी नहीं है, उसके लिए हम पहले स्केचेस करते थे, कॉन्सेप्ट्स बनाते थे, 3D मॉडल्स बनाते थे, पैटर्न्स, मोड्स एंड पार्ट्स देखते थे। तो कस्टमर को एक पूरा सॉल्यूशन मिलता था। वो ये नहीं सोचता था कि किससे करवाऊं मैं, कहाँ करवाऊं। वी यूज्ड टू ऑफर देम द फुल पैकेज। हमने ट्रेन के पार्ट्स बनाए हैं, बोट्स बनाए हैं। आज नेवी के लिए हमने पार्ट्स बोट्स बनाए जिससे वो लैंडिंग करते हैं, किसी भी बीच पे अगर लैंड करना है उसके लिए हम बोट बनाते थे। ये जितने व्हीकल्स आप देख रहे हैं इन सब के पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं। तो आई रश थ्रू दिस। एसेंशियली ट्रैक्टर्स ले ले, ट्रक्स ले ले, एसयूवीज ले ले, इन सब के पार्ट्स हम बनाते थे। ये बिजनेस हमने इसमें बहुत इनोवेशंस किए। हमने कई चीज़ें, जैसे ये एक मशीन थी जो 10 लाख की थी, ये 20 लाख की थी। हमने एक छोटा सा 10,000 का चीज़ बना के इसको उसके दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया, है ना। लॉट्स ऑफ इनोवेशन दैट केम एज लो कॉस्ट इनोवेशन। अगर बिजनेस में आज इंडिया जाना जाता है ना तो जुगाड़ के लिए जाना जाता है ना, पर जुगाड़ आपको लॉन्ग टर्म नहीं चलाएगा। जुगाड़ को जब तक आप स्केलेबल नहीं बनाएंगे जुगाड़ नहीं चलता है। जुगाड़ छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत बढ़िया है, पर जैसे ही आपने उसको स्केलेबल बनाना, तो स्केलेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, जैसे हम एक पेंट शॉप चलाते थे, तो पेंट शॉप में मैनुअल पेंटिंग होता था, और साल में 2 महीने 3 महीने जब बस का सीजन होता था ना, जैसे आप जो बसेस में आ रहे हैं, इनमें पीक डिमांड आता था, जिसमें मतलब पीक डिमांड होता था 50 बसेस अ डे, और लीन में जाता था 5 बसेस अ डे। अब आप लोग तो हायर नहीं कर सकते हैं, और जब हम रोबोट्स की बात करते थे तो रोबोट्स हमको करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ का आता था पेंटिंग करने के लिए। हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रोबोट को पकड़ा, जो ये हमने नोकिया के प्लांट से उठाया था। नोकिया का प्लांट बंद हो गया था इंडिया में, दिस वाज एन असेंबली रोबोट। इसमें हमने बहुत सिंपल एक लो कॉस्ट सोल्यूशन करके हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। तो इसके बाद ये छोटा सा 10 लाख का रोबोट यूज्ड टू फंक्शन लाइक अ 1.5 करोड़ रोबोट, बट दीस वर सिंपल आइडियाज व्हिच हेल्प्ड अस ग्रो आवर बिजनेस। 25 years into the business, I left my business. I sold it off in 2021, and then I went to Ladakh with Sonam Wangchuk, है ना। वो वहाँ पे अपना एक इंस्टीट्यूट चलाते थे जिसमें वो वहाँ की रिसर्च, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो मैं वहाँ पे I was one of the third persons there, the third idiot there. The first one was Sonam, the second was his wife who used to look into academics. I was the one who converted their ideas into business. वहाँ पे हमने क्या किया, उनके जितने आइडियाज थे उनको हमने यूज किया। जैसे वो आइस स्तूप बनाते थे, तो उसको हमने विलेज को रिवाइव करने के लिए काम किया। जो विलेजेस पानी की कमी की वजह से खत्म हो रहे थे, हमने वहाँ पे ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना के उनको रिवाइव किया। हमने जहाँ पे ये बिल्डिंग्स, जहाँ पे वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, -30 -40, हमने उसका एक प्रैक्टिकल यूज निकाला। सोनम जी ने एक इन्वेंट किया था प्रोसेस, जिससे बिल्डिंग्स वुड बी वार्म। अगर बाहर -20 भी है तो अंदर +20 से धूप से रहता था, कोई हीटर लगाने की जरूरत नहीं। तो हमने ये उनका जो आइडिया है इसको आर्मी को बेचा, है ना। आर्मी के लिए हमने बॉर्डर पे ऐसे शेल्टर्स बनाए which could sustain the soldiers without using any kerosene or anything else. ये हमने एक गांव को रिवाइव किया था जहाँ पे पानी की धारा बदल गई थी, तो हमने ग्लेशियर बनाया आर्टिफिशियल। उससे जो पानी आया गर्मियों में, उससे हमने आलू उगाया। आलू उगे तो उसके बाद लोग आना शुरू हो गए। अगले साल और ज्यादा खेती हुई। धीरे धीरे हमने वहाँ के घरों को रिवाइव किया, उनको पैसिव सोलर हीटेड बनाया। तो इस तरह के बहुत सारे हमने वहाँ पे फार्म स्टेज बनाए। जैसे जो घरों का एक कमरा हमने उनको बोला कि आप किराए पे दे दीजिए, जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ रहेंगे। Why have hotels only? होटल्स में लोग क्यों रुके, गांव में अपने कमरे में रुकवाओ। तो इस तरह हमने बहुत सारे आइडियाज ट्राई किए। एंड आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर लद्दाख, बॉर्डर्स पे रहता था, आर्मी के साथ रहता था। ये आर्मी का चाइनीज बॉर्डर पे ही हमने उनके लिए शेल्टर्स बनाए, जिसमें उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी और फिर हीटिंग की। ये कारगिल का वॉर मेमोरियल है जहाँ पे हमने ये शेल्टर बनाया। ये पीछे तोलोलिंग की पहाड़ी है, पास में टाइगर हिल है। All these where -60 तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे हमने ये शेल्टर बनाया जिसमें ये बंकर्स में इनको कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट डिड दिस जनरेट? दिस जनरेटेड रेवेन्यू फॉर अस। हमने साल भर में 7 करोड़ का रेवेन्यू किया सिर्फ आर्मी के लिए बिल्डिंग्स बना के, है ना। एंड 1.9 crores इज व्हाट वी सेव्ड व्हिच वी गिव बैक टू द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट 1 साल के लिए ऑपरेशनली फ्री हो गया। और इसमें मालूम है मेरे साथ किन लोगों ने काम किया? मेरे साथ 4 आर्किटेक्चर के इंटर्न्स थे। इंटर्न्स, ये 7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने 4 इंटर्न्स, कुछ और हमारे बिल्डर्स जो वहाँ पे लोकल थे उनके साथ बैठ के एग्जीक्यूट किया है। That what shows you कि अगर आपके पास आइडियाज हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है एक बिजनेस का और पैशन है, then you can generate this. Even at a college level, look around you. Can you solve problems around your own college? This will give you an idea how to solve problems and get things done.
हमने ऐसे बहुत सारे आइडियाज ट्राई किए। जैसे लोग कंप्लेन, मैंने बोला ना, हम प्रॉब्लम को या तो प्रॉब्लम बोले या अपॉर्चुनिटी बोले। जैसे हमने वहां पे जो वेस्ट था ना, वेस्ट को, प्लास्टिक के वेस्ट को हमने शेड किया और उनको हमने इंसुलेशन में यूज किया बिल्डिंग में। प्लास्टिक इज ए गुड इंसुलेटर। तो हमने बिल्डिंग की 2 दीवारों के बीच में ये शेड करके इसको पैक करके सील कर दिया, बिल्डिंग गर्म हो गई ना। आज वहां पे हमको थर्मोकोल मिलता नहीं है ले में, जितने भी टूरिस्ट आके बर्बादी कर रहे हैं वहां पे अपना वेस्ट डंप कर रहे हैं, हम थर्मोकोल को एलिमिनेट कर चुके हैं। प्लास्टिक के हमने बेलिंग करके उनको शेड करके हमने बिल्डिंग्स के अंदर भरना शुरू कर दिया। तो या तो आप प्रॉब्लम देखें या उसकी अपॉर्चुनिटी देखें। हमने विलेजेस में जा जाके, जहाँ पे मतलब पूरी वीरान हो गए थे विलेजेस, हमने वहां पे टूरिज्म से उनको रिवाइव किया। आई थिंक ये तो मोर और लेस, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमने लेजर लाइफाई पे काम किया, हमने लेजर बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन पे काम किया वहां पे, कि पहाड़ों में केबल डालना मुश्किल है, कैन वी डू दैट। तो सवाल ये था कि हाउ डू वी चैलेंज द सिस्टम। इट इज नॉट अबाउट जस्ट, आज जैसे हम आज भी यही कर रहे हैं। आई वर्क विद एन एनजीओ जिसमें हम गांव में जाके काम करते हैं। हम 30 गांव में काम करता हूँ इंदौर के आसपास, जहाँ पे हम छोटे छोटे जो बिजनेसेस है ना, कोई किराने की दुकान है, कोई खाना बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, हम उनको हेल्प करते हैं कि उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनकी ब्रांडिंग कैसे हो। जैसे संदलपुर के पास एक जगह है जहाँ पे ये महिलाएं ऐसे 5 पत्ती काढ़ा बनाती हैं, है ना। ये 20 रुपए की एक बॉटल बिकती है, पुरानी बिस्लरी की बॉटल में। हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को साथ में लिया, उसकी ब्रांडिंग की, उसका पूरा पैकेजिंग किया। आज ये बॉटल 100 रुपए में बिकती है ना। और शहरों में आ जाए तो 290 रुपए में भी बेच लेते हैं। हमको मालूम है यहाँ खरीद लेंगे। क्या किया गया है, इट इज अबाउट चैलेंजिंग द सिस्टम। और ये जो बिजनेस, जो ये महिलाएं मेहनत कर रही है, इसमें हमने एक स्टार्टअप को बीच में जोड़ा और उसको ये क्रिएट कर दिया एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, जो आज ज्यादा रेट पे, ज्यादा वॉल्यूम पे क्रिएट्स इनकम फॉर ऑल ऑफ देम। अनदर थिंग वी रियलाइज, इसमें उन्होंने आज हिंदुस्तान में, आपको मालूम है 30% विमेन बिजनेसेस क्या है, कोई बताएगा? टेलर्स, सिलाई कढ़ाई। 30% विमेन इन बिजनेसेस इन इंडिया आर ओनली टेलरिंग। और हालत क्या है मालूम है? आप किसी गांव में चले जाओ, 20 महिलाओं को कोई एनजीओ आके ट्रेनिंग करवा जाता है, एक सिलाई मशीन थमा के चले जाता है, पता चलता है सब सिलाई कर रहे हैं, गांव में कोई कस्टमर तो बचा ही नहीं, सभी को आती है सिलाई। इज दैट अ वर्केबल सॉल्यूशन? हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने एक स्टार्टअप को ढूंढा जिसका नाम है shaktijola.com, जिसको हमने क्यूरेट किया। ये क्या करती है, ये वेस्ट क्लॉथ लेती है ना, अच्छा वाला क्लॉथ लेती है और उनसे ये बैग्स बना देती है। जैसे ये क्लॉथ को लेके गांव की महिलाओं से, सो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इन अ फैक्ट्री, दे आर नाउ रनिंग अ सेटअप लाइक एन अमूल। अमूल को मालूम है ना कैसे काम कर रहा है, जगह जगह से वो दूध ले रहे हैं। लिज्जत पापड़ घर घर में बन रहा है ना, और उसको ब्रांड करके कोऑपरेटिव रूप में बेच रहे हैं। सेम वे इन्होंने इस तरह से ये बैग्स को क्रिएट किया है, मतलब राइट फ्रॉम दीज ब्यूटीफुल टाई एंड डाई बैग्स टू दीज टोट बैग्स टू स्लिंग बैग्स, मतलब वो 6 रुपए के बैग से लेके 2000 रुपए तक का बैग ये बना रहे हैं विदाउट अ फैक्ट्री, यूजिंग द नेटवर्क ऑफ दीज विमेन इन दीज विलेजेस। सो दीज आर आइडियाज। जैसे हम बनाना वेस्ट पे काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, बनाना के वेस्ट को लिया और उसको हमने ये कन्वर्टेड देम इनटू विद लॉट ऑफ मशीनरी एंड प्रोसेस, हमने कुछ डिजाइन किया और उसके बाद ये प्लेट्स बन गई हैं। इस प्लेट की खूबसूरती आप जानते हैं क्या है? एक तो फील्ड में जो बनाना है ना वो सड़ रहा है, बनाना का जब फल लग जाता है तो पौधा वहीं पे सड़ता है और उसमें लिक्विड ज्यादा होता है तो जलाऊ भी नहीं है, तो किसी काम नहीं आता है, तो सड़ता रहता है, सड़ता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट कर रहा है। हमने क्या किया, उसका जो बनाना का सैप है ना, उसको वहीं खेत में एक्सट्रैक्ट कर लिया और फार्मर को लौटा दिया कि ये आपका फर्टिलाइजर है। एक वैल्यू क्रिएट हो गया बेस से। सेकंड, हमने ऐसी प्लेट्स बना ली, ये 2 वैल्यू क्रिएट हो गए। अब ये जो प्लेट की कॉस्ट है ना, ये हम प्लास्टिक या अदर मटेरियल से कंपीट नहीं कर पाते। हमने क्या किया मालूम है, इस प्लेट को अगर आप खाने के बाद अगर आप वापस कर दो तो हम आपको पैसे वापस करते हैं। क्यों पैसे वापस करते हैं मालूम है? इसको क्रश करके हम इसको कैटल फीड में दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। कैटल फीड में ये 3rd वैल्यू क्रिएट हो गया है, यानी एक वेस्ट मटेरियल से वी हैव क्रिएटेड 3 वैल्यूज एंड दैट मेक्स अ प्रोडक्ट वायबल, दैट मेक्स इट लॉन्ग टर्म। और ये हमने ओपन सोर्स कर दिया है, मतलब ये आइडिया जो है, नाउ दिस कैन बी डन बाय एनीबॉडी इन द कंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू लाइसेंस इट, वी आर फ्रीली डिसेमिनेटिंग द टेक्नोलॉजी हाउ टू डू इट। सो दिस इज वेयर वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट कमिंग टू what I wanted to talk, because हमने आज एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी पढ़ ली, हमारे आसपास हमने सब सुन लिया, but what are the lessons of my journey I wanted to share here, and it's a quick last 5 minutes.
डू नॉट फियर टू फेल, है ना, गेट अप, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन। हमने जॉन डियर के लिए ये फेंडर्स बनाए थे सबसे पहले, और यू वोंट बिलीव इट, जब पहले वाले ये फेंडर्स बनाए हमने बहुत बढ़िया डिजाइन किया, जॉन डियर ने बहुत सुंदर डिजाइन किया, बट जब ये फील्ड में गए तो ये क्रैक हो गए, यानी टूट गए ये फेंडर्स। जॉन डियर हमारे पास आया, बोला कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, कैसे कैसे हैंडल करेंगे। उन्होंने पूरा कंसाइनमेंट टर्की में एक्सपोर्ट किया था, टर्की में ट्रैक्टर्स फेल हो गए। We went back to our drawing board. We went back and saw कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। हमारे प्रोसेस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। फाइनली जब हम उनकी लाइन पे गए और जब जाके देखा कि वो टाइट कैसे कर रहे हैं, तो पता चला हमारे जो इसके माउंटिंग होल्स थे 7 होल, और इसकी जो फ्रेम थी मेटल फ्रेम, उसमें मिसमैच था, और इसकी वजह से जब वो टाइट करते थे तो हल्का सा एक क्रैक डेवलप होता था, और जब ट्रैक्टर चलता था तो टूट जाता था। हम अगर उस वक्त हाथ झाड़ के बैठ जाते कि हमको तो नहीं मालूम, हमने आपने जो पार्ट दिया हमने बना लिया, हम वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। सो वी persisted and finally the problem got solved, and the problem got solved to a manner that we also discovered कि इसमें एक नया प्रोसेस हम यूज कर सकते थे, जो एक नया मटेरियल सिस्टम था। So this material that we then worked with a German company was an unbreakable material। मैं फेंडर के ऊपर आज अगर कोई ट्रक चला दूं, ट्रैक्टर चला दूं, तो ये टूटेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ये वो मटेरियल है जिसमें 2006 में नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था। We got that material in India and this opened up a very large market for us। तो जॉन डियर के जितने एक्सपोर्ट के ट्रैक्टर्स हुए ना, उसके बाद उन्होंने हम पे स्विच ओवर कर दिया। What did this tell us? That आप अगर प्रॉब्लम पे पहली बार या तो झगड़ा कर लो, हमारा होता है ना कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो चवन्नी बचाने के चक्कर में हमारी लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी हम गंवा देते हैं। एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम है, मूव ऑन, फिक्स द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। दैट्स वेयर बिजनेस कम्स। Learn from your mistakes, get up and try again and fix it. Do not fear to try new things even if it does not look commercially or technically viable. The learnings from these will be assets for future. हमने 1997 में टाटा मोटर्स के लिए फर्स्ट फाइबर ग्लास का बस बनाया था। ये जो फुल फ्रंट और रियर आप देख रहे हैं, ये फाइबर ग्लास का था, जिसमें टाटा ने बोला ये तो टूट जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। We said we are ready to take the risk and the cost. आप ट्राई करिए, वी आर कन्विंस्ड अबाउट इट। जब पहली बार इस व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ ना, तो इसने बिल्कुल हेलमेट की तरह परफॉर्म किया। हेलमेट में देखा ना क्या होता है, टूटता नहीं है, पिचकता नहीं है, वो क्रैक होता है ना। तो जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एक ड्राइवर से, तो दे रियलाइज कि कांच तक नहीं टूटा और वो लोकली डैमेज हुआ सिर्फ, जो बाद में रिपेयर भी हो गया ना। उसके बाद तो ऑर्डर्स की लाइन लग गई। मतलब ये जो बस जिसमें हमने रिस्क लिया ना, पहले हमने सिर्फ 2 या 5 या 10 दिए थे उनको, एंड सडनली जो ACGL जो टाटा का प्लांट था, जो मतलब 2 बसें पर डे बनाता था, दे स्टार्टेड मेकिंग दिस बस। इसका डिमांड इतना है कि 30 बस पर डे बनाने लगे। तो वी वर कन्विंस्ड अबाउट आवर प्रोडक्ट, वी वर कन्विंस्ड कि हम इसको ट्राई कर सकते हैं, ये फेल नहीं होगा। स्कूटी में आप लोग ये फ्रंट वाला पार्ट था, आजकल आदत है आपको कि ये प्लास्टिक में आप देखते हैं, प्लास्टिक का आता है ये, है ना। शुरू में जब स्कूटी आई थी ना, ये पूरा स्टील का होता था। तो स्कूटी हमारे पास आई, उन्होंने बोला कि हमको ये प्लास्टिक में फाइबर ग्लास में डेवलप करना है। डू यू नो व्हाट वी सेड? वी सेड इसको आपको फाइबर ग्लास में नहीं बनाना चाहिए। वी वर ऑनेस्ट अबाउट इट। हमने कहा फाइबर ग्लास इज नॉट द राइट टेक्नोलॉजी फॉर दिस, आप इसको ये वाले प्लास्टिक में ट्राई करिए, ठीक है। वी लॉस्ट बिजनेस। लोगों ने कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों को तो बना लेना चाहिए था, आप कहां से कहां पहुंच जाते। your turnover would have jumped 100 times. But we said no, this is not the right process. Do you know उसका एडवांटेज क्या हुआ? उन्होंने हमसे फिर भी TVS ने हमसे एक प्रोटोटाइप बनवाया, उसको टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि हम जो बोल रहे थे सच बोल रहे थे। इसका एडवांटेज क्या हुआ मालूम है? आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बड़ी छोटी इंडस्ट्री है। आज जो इस कंपनी में काम कर रहा है छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएगा, टाटा से महिंद्रा में जाएगा, महिंद्रा से अगले में जाएगा। आज जितने ये लोग उस TVS कंपनी से छूट के अलग अलग कंपनीज में गए ना, एवरीवन टुडे रिमेंबर्स अस कि ये टेक्निकली साउंड कंपनी है, ये बेवकूफ नहीं बनाते हैं। और हमको वहां से ऐसी ऐसी जगहों से ऑर्डर आया जहां हमको कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि वो लोग वहां गए, वो हमारे मार्केटिंग एजेंट्स बन गए। So be truthful, be honest with your customer. Do not lie. You can fool a customer once, but he will never come back to you after that. लंदन बसेस, है ना। लंदन बसेस में हमने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। हमने कहा add value to your offer. The customer has stated needs and hidden needs. Explore them all.
हम जब लंदन बसेस को पार्ट देने आए तो उन्होंने बोला हमको फाइबर ग्लास के ये बम्पर्स चाहिए, ये सामने वाले। हमने कहा बम्पर दे देंगे। तो जो हमारा बम्पर वो वहां पे 100 पाउंड में खरीदते थे, हमारा लैंडेड कॉस्ट आता था 70 पाउंड। ठीक है, हमने जाके एक बार देखा उनकी बस को कि हो क्या रहा है, कैसे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो वी रियलाइज कि इसको हमारे पार्ट को लेने के बाद वो पेंट करते हैं। अब मैं अगर कोई पेंटेड पार्ट अगर 70, मैं अगर बेसिक पार्ट 70 रुपए में दे रहा था मान लो, तो पेंटेड मैं 100 में देने को तैयार था। ठीक है, तो वहां जाके हमने रियलाइज किया कि पेंटेड पार्ट जो है ना, उनको 100 रुपए और लगते हैं पेंट करने में। तो जो पार्ट वो पेंटेड में 200 पाउंड में ले रहे थे, वो हमारा पार्ट 100 पाउंड में पहुंच रहा था। तो मेरा क्या हुआ, मेरा मार्जिन तो स्ट्रेट, उसको जो कस्टमर को एडवांटेज था वो सडनली बढ़ गया। तो जहां उन्होंने एक मॉडल की हमसे बस लेने की बात की कि हम आपसे पार्ट लेंगे, कुछ लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, क्योंकि 100 से 70 में उनको 30 पाउंड का डिफरेंस, उतना दूर ट्रांसपोर्ट करना, लॉजिस्टिकली इंडिया से यूके भेजना वायबल नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हमने उसको सेविंग को, हमने कहा कि पेंटेड पार्ट में आपको ये सेविंग ज्यादा हो जाएगी, उन्होंने गपक लिया। उन्होंने तो फिर सारी बसों की हमको पार्ट्स डाइवर्ट कर दिए। तो दैट्स वेयर वी ग्रू आवर बिजनेस बाय एडिंग वैल्यू ऑन व्हाट वी सॉ। उन्होंने नहीं देखा था ये, हाँ ये अपॉर्चुनिटी हमने ढूंढा, हम जाके गए और सवाल पूछा कि क्या हो रहा है। तो देयर इज अ स्टेटेड नीड एंड देयर इज अ हिडन नीड, उन सबको ढूंढो। सिर्फ कस्टमर अगर जो बोल रहा है उसको सुनने की जरूरत नहीं है, उसको देखो कि वो पीछे हिडन और क्या क्या मांग रहा है। वॉल्वो की बसेस, यू नो, always remember a good design costs as much as a bad design in terms of material, labor. Always strive for good. हमने वॉल्वो के लिए जो फर्स्ट बस बनाई थी ना, हमने उसको ब्यूटीफुली डिजाइन किया। वॉल्वो ने बोला अरे ये ज्यादा वो नहीं है, इंजन के नाम पे ही बस चलता है। We put our best efforts in putting the design in place. हमने ऐसे स्केचेस बना के उनके लिए डैशबोर्ड्स बनाए, प्रोटोटाइप्स बनाए, बहुत खर्चा आया है इस पे। बट वो जो कॉस्ट आया ना, उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। फिर लोग ये नहीं बोले कि इसको कॉपी करके कोई और बना लेगा, या कोई एक डब्बा सा डैशबोर्ड है। बाकी बसों में जहाँ डब्बे से डैशबोर्ड थे और ये बस में जो था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था, है ना। वॉल्वो ने हर बार अपनी बस जब नई लॉन्च की और हमारे नए डिजाइन के साथ लॉन्च की, हर बार बस की कीमत 5 लाख बढ़ती गई, जबकि मेरा किट कॉस्ट सेम रहा। सो दिस इज व्हाट गुड डिजाइन डज फॉर यू। ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द कर्व। सवाल ये नहीं है कि आप आज जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। जैसे फाइबर ग्लास में हम जिस टेक्नोलॉजी में आए थे, व्हेन वी स्टार्टेड वी वर मेकिंग 2 पार्ट्स अ डे, है ना। देन वी केम अप विद अ टेक्नोलॉजी दैट डिड 8 पार्ट्स अ डे। तो कंपटीशन पीछे छूट गया। लोगों ने बोला भाई 8 पार्ट्स अ डे तो बहुत बढ़िया बेंचमार्क है। हम 5 साल बाद एक और टेक्नोलॉजी ले आए जिससे वी कुड डू 30 पार्ट्स अ डे। कंपटीशन पागल हो गया कि हम 8 तक पहुंचे हैं और ये तो 30 पे पहुंच गया। उसके बाद मालूम है हमने किस लेवल पे जंप किया? कैन समवन टेल मी व्हाट वाज द नेक्स्ट नंबर वी मेट? 100. Anyone else? We jumped to 256 part a day. Competition could never catch up with us. है ना? हम जिन कस्टमर्स में रहे हम वहां पे आगे बढ़ते गए। मुद्दा यही है कि डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। अपने बिजनेस को लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो गया तो उसमें बैठिए मत। Keep reinventing yourself. Keep thinking out new solutions. Keep taking the next leap. We went from 2 to 8. People said great, wonderful. हम वहीं बैठ जाते तो हम खत्म हो जाते, क्योंकि 2 साल बाद कंपटीशन में 8 पे आ गया, हम 30 पे गए। 30 पे जब तक आ गए हमने कहा कुछ रेडिकल करेंगे, हम 256 पे चले गए, फिर कॉम्पिटिटर पकड़ ही नहीं पाया, है ना। तो दिस इज वेयर कीप डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज ऑलवेज नर्चर एंड चेरिश द रिलेशनशिप ऑफ ऑल योर स्टेक होल्डर्स। बिजनेस अकेले इंसान से नहीं चलता है, अपने सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को, सबको साथ में लेके चलिए, है ना। आज से कुछ साल पहले we had a major challenge in our Goa factory. We had a factory in Goa. One fine morning 9 o'clock I got a call, सर आग लग गई। धू करके जला था हमारा फैक्ट्री, है ना। कुछ नहीं बचता है क्योंकि हमारा पेट्रो फायर होता है तो बिल्कुल धू करके जलता है, कुछ नहीं बचता है। और हमारी आप सोचिए ये जो लाइन है ना, this was catering to an export market in Belgium, in USA. हम टाटा की लाइन को केटर कर रहे थे और फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा, मतलब जो स्ट्रक्चर था ना वो भी पूरा मुड़ गया। आप जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जितने एम्प्लॉइज थे, मतलब 40 किलो की एक महिला थी जो वहां पे 200 किलो का बैरल धक्का देके बाहर ले गई ताकि उसमें आग नहीं लग जाए, उसमें फ्लेमेबल मटेरियल था। कस्टमर्स आए, दे गेव अस ब्लैंक चेक्स, दे सेड you write the figure and keep the money, you will need it to rebuild your factory. Suppliers आए और उन्होंने बोला 6 महीने तक आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप माल लीजिए and make your parts and rebuild the factory.
This was because we always stood by every one of our stakeholders, यानी customers, suppliers, everyone. And that's why तीसरे दिन, ये तीसरा दिन है ना, फैक्ट्री का तीसरा दिन है, हमने बाजू में एक शेड लिया, पूजा की और काम शुरू कर दिया. हम रुके नहीं. मंथ एंड में किसी कस्टमर की एक भी लाइन मिस नहीं हुई. हमने बाहर रास्ते में काम किया, रास्ते में शेड लगाया, गर्मी का मौसम था, हमने शेड लगाया और काम शुरू किया, हमने पार्ट्स बनाए. By the 10th day we had our first container leaving for Belgium. वहाँ पे वो चौंक गए कि कैसे किया आपने. हमने कहा हमको सबका सपोर्ट था, हमको कोई चिंता की बात नहीं थी. जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ. Can we move forward? 3 months later the factory was rebuilt like this. Nobody believed that we will jump back, but we had the backing of all our stakeholders. So that's why business, ये याद रखिएगा, लोगों से चलता है, पैसे से नहीं चलता है, मॉडल से नहीं चलता है, लोग चलाते हैं business. Always take care of people. That's the most important thing. लास्ट 2-3 जो मेरे बात के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे हमने बोला रिसर्च पेज, आप रिसर्च करेंगे, एंटरप्राइज में काम करेंगे, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो जो हमने लद्दाख में देखा, इट क्रिएट्स मनी एंड रेवेन्यू. देयर इज आल्सो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एप्स. एप्स के बियॉन्ड भी दुनिया है. और अगर आप इस तरह के जो हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, वेदर हम वो बैग्स बनवा रहे हैं या वो प्लेट्स बना रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास देखेंगे तो बहुत. आज जरूरत किस चीज की है? आज जरूरत है एक इनोवेटिव एंटरप्राइज की जो आज आसपास अपने नई नई चीजें कर सके. एंड ऑल दैट इट नीड्स इज अ गुड विजन, गुड सेट ऑफ पीपल हु कैन ब्रिंग अबाउट चेंज. नाउ क्वेश्चन इज, आर दोस पीपल गोइंग टू बी यू? ये जो यहाँ पे 14, 16 और 100 और 15 पे था, जो 16 लोग ही बिजनेस करना चाह रहे थे, अब इतने से कितने लोग बिजनेस करना चाहेंगे? तो और कम हो गए क्या? I should take back my speech now. Great. So point यही है कि try out. ऐसा नहीं है कि मतलब business is not just about running businesses, but it's also about entrepreneurial spirit. यानी आप में क्या कुछ नया करने का जज्बा है, कुछ नए करने की सोच है. अगर आप वो भी बिल्ड करते हैं तो even it improves your employability. Companies look for people जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो अपने बूते पे आगे नई नई चीजें लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं ना. So bring about that spirit in you, and I'm hoping that some of you, at least many of you here, will come up with new businesses that we all can be proud of in the years to come. आज best part ये है कि there are so many opportunities being provided by the government. There are so many incubation centers. जैसे सर आज यहाँ आए हुए हैं, will be speaking next. आज इनका एक beautiful incubation center है. आज government इतनी funding दे रहा है, support provide कर रहा है. आज अगर हम इन opportunities को use करेंगे, तो I'm sure many of us will come up with new solutions and new businesses. Thank you so much. Thank you. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. So I request Dr. Poonam Nagar ma'am to propose vote of thanks. Please ma'am. Thank you, Dipisha. It is my privilege and honor to extend a vote of thanks on behalf of all of us present here today. We have been fortunate to listen to an incredibly insightful and thought-provoking lecture on innovation in business. Our esteemed speaker has not only enlightened us with their deep knowledge, but also inspired us with practical insight and future-oriented strategies. Firstly, I would like to express our profound gratitude to our expert speaker for taking the time out of their busy schedule to be with us. Your expertise and experience in the field of business innovation are truly unparalleled, and we are grateful for the clarity and depth with which you shared your insight. The real-world examples and case studies you presented have illustrated this concept brilliantly. Make it easier for us to grasp and apply them in our future respective fields. I would like to thank you for addressing our students and their queries with patience and precision. Students, please join me in giving a round of applause to our distinguished speaker for an outstanding and inspiring session. Thank you. Thanks once again.